میں چونکہ اس اسکول کا خود بھی طالب علم ہوں، یہ پیچھے تمام میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مجھ پر فخر ہے، میں نے بھی ان کی عزت کو بلند کیا تھا اور آپ بھی ہماری عزت کو بلند کریں۔ دیگر میں آپ کو چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پیچھے سے مجھے کافی وقت ہو رہا ہے کہ ختم کریں، لیکن میں چند ایک باتیں کرنے کے بعد ہی اپنی بات ختم کروں گا۔ بات بیٹا یہ ہے کہ اب آپ چونکہ جہاں سے جا رہے ہیں، اب آپ نے اپنا مستقبل خود بنانا ہے اور آپ نے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، اساتذہ کرام کی عزت کرنی ہے، اور ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ننھے منھے بچے ہیں، آپ پاکستان کے بیج ہیں، آپ نے ہی اس پاکستان کو سہارا دینا ہے اور اس کی ترقی کے لیے آپ نے جد و جہد کو جاری رکھنا ہے تاکہ یہ ملک سلامتی سے قائم و دائم رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنی طرف سے الوداع کرتا ہوں، لیکن ہم تمام اساتذہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے الوداع نہیں ہو رہے، آپ ہمیں اکثر و بیشتر یہاں ملتا رہا کریں، لیکن یہ جو چند ایام ہیں اس میں آپ نے اپنی تعلیم کو اتنا جاری رکھنا ہے تاکہ اسکول کے لیے آپ اچھے ثبوت ثابت ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جناب چودھری مختار احمد انجم صاحب، آپ نے اچھا محب وطن اور ایک ذمہ دار پاکستانی بننا ہے، ان الفاظ سے وہ آپ سے رخصت ہو کر گئے ہیں۔ اب میں اپنی اس درسگاہ کے ایک معزز ساتھی، فاضل دوست، دھیمے دھیمے انداز میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے دوست جناب گلیڈون اعجاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب گلیڈون اعجاز صاحب۔ بات بتائیے جناب صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچوں، آج کا دن ایک تاریخی دن ہے اور یہ دن ہماری اور آپ کی زندگی میں ہر سال آتا ہے، اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے۔ سب سے پہلے میں جانے والے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ باقی ماندہ ایام جو ان کے امتحان میں رہ گئے ہیں ان میں خوب محنت اور خوب مشقت کریں تاکہ وہ محنت جو آپ نے گزشتہ دنوں میں کی ہے اور آپ کے اساتذہ کرام نے کی ہے وہ رائگاں نہ جائے۔ گزشتہ سیشن میں جو کہ جائے جماعت دہم کے لیے 10 سالوں کا ایک سیشن تھا، کیونکہ میں جماعت دہم کو 10 سال کی جو ان کی محنت ہے اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے یا اس کا پھل ہوتا ہے کہ بچے نے 10 سالوں میں جو سیکھا ہے اگر وہ 10ویں جماعت کر جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے 10 سال کی جو محنت ہے وہ برابر ثابت ہوئی ہے۔ اس جماعت دہم میں خصوصاً ہمارے صدر معلم محترم ہیڈ ماسٹر صاحب کا خصوصی ہاتھ رہا ہے، اور میں یہ بات یقیناً اور خصوصاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے
दफ्तरी मसरूफियात को छोड़कर, इंतज़ामी अमूर को छोड़कर दिन रात एक करके उन्होंने जमात दम को पढ़ाया है। बहुत कम सदर मोहल्लम मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने इंतज़ामी अमूर छोड़कर तदरीसी काम में इतनी दिलचस्पी ली हो। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इस पूरा साल में सुबह से लेकर शाम तक कई कई घंटे वो जमात दम के साथ लगे रहते, हर तरह से उनको, हर मजमून में उनको तरक्की देने में, आगे ले जाने में उनकी मदद करते। तो ये आप पर मुनहसर है कि बाकी मांदा अय्याम में घूमने की बजाय, सड़कों पर फिरने की बजाय आप तमाम असातिज़ा की उस मेहनत को जो वो 10 साल आपके साथ करते रहे उनको ज़ाया होने से बचाएं। आपने भी जो मेहनत की है उसका दारोमदार भी इन्हीं दिनों पर है। अगर आपने इन दिनों में खूब मेहनत की, खेलने कूदने से गुरेज किया, तो फिर ही वो मेहनत जो है वो बराबर साबित हो सकती है। दूसरी अहम बात, आप इस इदारे में रहे, मैं बहुत खुश हूँ कि कोई भी इंतज़ामी मसला हमारे लिए पैदा नहीं हुआ। ये आपकी शराफत, नेक निजती, मेहनत से लगन, असातिज़ा से लगाव की निशानियां हैं। तमाम बच्चे जब भी उनको बुलाया गया, छुट्टियों में बुलाया गया, हड़तालों में बुलाया गया, मैचेस के दिनों में बुलाया गया, तमाम बच्चे खुशी के साथ आए और उन्होंने पूरा सेशन बड़े अच्छे और महज़ब बच्चों की तरह अपने यहाँ के दिन जो थे वो खुश असलूबी से पूरे किए, जिसके लिए मैं जाने वाले बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। जाने के बाद ये एक बड़ा अनमोल अनमिट रिश्ता है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। बहरहाल अब आप दुनिया के समुंदर में हैं, जहाँ समुंदर का लफ्ज़ आते ही थपेड़े जो हवा के, पानी के, उनका तसव्वुर इंसान के ज़हन में आ जाता है। अब आप जब इस दुनिया में जाएंगे तो यकीनन आपको मुश्किल किस्म के हालात से सामना करना होगा। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सिर्फ यही एक बात कहूँगा कि ज़िंदगी के जिस शोबे में भी जाएं, जो भी पेशा आप अपने लिए अपनाएं, उसको मेहनत, लगन, दयानतदारी से करें, जिससे आपका भी नाम रोशन हो, आपके वालिदैन का भी नाम रोशन हो और इस अदारे का भी नाम रोशन हो। इस कामयाबी की दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जनाब ग्लैडविन एजाज साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं अपने एक दूसरे फाजिल दोस्त जनाब शाहिद सदीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर आकर फारगुल तहसील होने वाले बच्चों को अपने ख्यालात से आगाह करें। जनाब शाहिद सदीक साहब। मानूस थे आप जिससे इस कदर ये दरो दीवार आपको अलविदा कहती हैं। ज़ीवकार सदर, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम और दुश्मनाने महफल, आज की ये दिलफरेब और अनगिनत खुशियों से मरसा महफल आपको इस स्कूल से जुदा करने के लिए मुनक्कद की गई है।
खुशी और उदासी के मिले जुले जज्बात से कुछ कहने की जिसारत कर रहा हूँ। वैसे तो हर रोज़ अपना सबक शुरू करने से कबल 2-4 मिनट पिंदो नसा में गुजर जाते थे, लेकिन आज का खिताब एक होनहार बिरवा के कहने पर होने लगा है। हाज़रीन, मैंने लफ्ज़ जुदाई इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये रिश्ता नाता टूट नहीं सकता, बहरहाल रस्म दुनिया है, इसको हर हाल में आपने पूरा करना ही है। अजीज़ दोस्तों, खुशी और मसरत हम सब असातिज़ा को इस बात की है कि आपने अपनी प्यारी दरसगाह में अपना स्कूल का ज़माना मुकम्मल किया है। इस 10 साला दौर में हर सुबह आपके लिए एक नया पैगाम लेकर आई। असातिज़ा कराम ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक आपको ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया और आपके गैसवों को खूब से खूब तर संवारा। सदर मोल्लम ने तो जमायत दहम से खसूसी दिलचस्पी रखी और आखिरी दिन तक आपको अपनी अच्छी अच्छी बातों से महजूज करते रहे। वो वाकई ना सिर्फ कोना मश्क उस्ताद बल्कि अच्छे नाज़म भी हैं, बल्कि मैं यहाँ ये कहने की जिसारत करूँगा कि वो अपने काम में यकता हैं। अजीज़ तलबा, आज आपको अपना माजी शिद्दत से याद आ रहा होगा, जिस दिन आप मासूम और भोला बाला सा चेहरा अपने किसी बुजुर्ग की उंगली हाथ में थामे लुढ़खड़ाते कदमों के साथ इस इदारे की आहनी दहलीज में दाखिल हुए होंगे। अशरफ साहब, अमानत साहब, अनायत साहब ने आपको खुश आमदीद कहा होगा और आपके बुजुर्ग आपको इस इदारे के सुपुर्द करके चलते बने होंगे। आज आपको माशाअल्लाह नेक जज्बात, नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साए में रुखसत किया जा रहा है। असातिज़ा कराम से जहाँ तक हो सका आपकी परवरिश और आबयारी करने में उन्होंने कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं किया। असातिज़ा कराम को आज़ाद खुशी है कि आपने अपना 10 साला दौर बड़ी दिलचस्पी से और मुनज़्ज़म तरीके से पूरा किया। ख़ास तौर पर मैं ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस सेशन ने हमें इतना बिज़ी रखा, तमाम असातिज़ा कराम ने भी अपने अपने पीरियड्स और अपने अपने काम को खुश असलूबी से सर अंजाम दिया। अज़ीज़ तलबा, आपकी ये डिस्पर्सल हमारे लिए उदासी और यासियत का बायस भी बनी है, क्योंकि हम सब एक ख़ानदान की सूरत में ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। हम सब ने एक ही ट्रेन में बैठकर सफ़र किया था, लेकिन अब हमारी मंजिल आ चुकी है। हमने अपने अपने रास्तों पर गामज़न होना है। आप में से कुछ दोस्त मज़ीद तालीम के लिए कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे, कुछ घरेलू मजबूरियों और वसाइल की कमी के बायस सर्विस की तलाश में सरगर्दा हो जाएंगे। फ़ौजी बच्चे जो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, अपने अपने आबाई गांव की तरफ उड़ान करेंगे। लेकिन आप जहां कहीं भी होंगे, आपको स्कूल की ज़िंदगी शिद्दत से याद आएगी। आप दोबारा उस वक़्त को पुकारोगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकेगा। असातिज़ा कराम और रईस मदरसा की बातें आपको सोते वक्त भी याद आती रहेंगी। दोस्त, अहबाब और माहौल की कमी को आप अपने ख्यालात के तारों से ही आसूदगी बख्श सकेंगे। असातिज़ा कराम भी इस सेशन को एक